joining. I I don't know who else is the admin over here. All right. So, good evening, everyone. I hope I'm audible and the video is also clear. Just let me know so I'll continue further. Yes, sir, you are audible. All right. So, before starting this session, let me just give a brief introduction what we are going to do today. So today we are going to see one of the most demanding skills, that is Android application development. We are going to see in this webinar like how you can learn this skill and how you can earn after learning this skill. So before starting this session, let me just introduce myself. Hello everyone, myself Hussain Nagwadria. I am the developer now. Basically a developer with an entrepreneurial mindset. Currently, I'm working as an instructor at Skill Vertex. I also give guest lectures at colleges in Mumbai University. So today, I'm going to drive you through the process of the entire journey of application development. So before starting, um, I just want to know something about you, like your background. Where are you from? What are you doing? What are you pursuing right now? If you are doing BTech or BC or BSci, you can just write it in the chat box. What you're currently pursuing and from where. For example, I'm Hussain. If I'm pursuing my BTech, so I'll write BTech from Maharashtra. I want you to write this right now so that I get a better understanding. So for the people who have joined right now, I want you to write your background and your state in the chat box, guys. Let's a little bit interactive, right? Okay, so that this session would be fun. All right, so I see people joining. All right, all right. So I think I need to give the intro again. All right. So good evening. Good evening, Pallavi. Good evening, Shivam. Good evening, Varsha, Indu, Pravesh, Tejal, Mahesh. I hope you all are there. So let me just introduce myself. Myself, Hussain Nagwadia. I'm the developer now, developer with an entrepreneurial mindset, and I'm an instructor at Skill Vertex, app developer instructor, and I also give guest lectures in Mumbai University in colleges. Okay, not in university, in colleges. So before going further, I want you all to put your background
and your state into the chat window, just so that I get to know you better. Okay, I want you to do it right now. Otherwise, I'll force you to unmute. Hey, oh, what do you guys want? You want to learn, right? You're investing your time, so you want to get something. That's the mindset. Is there any issue? Any technical background, but I'm interested in subject. My background is journalism, and I've done post graduation diploma in journalism. That's great. And still, AppSart is interested in app development. That's what I want. I want to know your background, whether you are from technical background or non-technical background. What are you currently doing, so that I can prepare my content according to that only. What about others? Indu, Avesh, Mahesh, guys, fast! I'm waiting. I'm waiting for that. Just write your background, BTech from Maharashtra, or BTech from Andhra Pradesh, or BTech from Gujarat. That's it. Just like Siddharth did. All right. So, okay. So, even if you're not from any technical background, that's absolutely fine. Because for learning this skill, it's not compulsory that you need technical background. Okay. So, I have a response from Tejal. She's doing Bachelor's of Science, non-medical, from Ludhiana. Okay, Bachelor's of Science. That's in general, not related to computer science. All right. That's good. I've even seen people from commerce background. Okay, it is related from science. I've seen people from commerce, from arts. They're doing app development, and it's not a compulsion that you are from the computer science stream only or from IT field. That's absolutely fine. Even if you're from, even if you're say journalism, is a journalist. So that's absolutely fine. Even you can learn app development. This is a skill anyone can learn. So, all right, any other person who is interested in to answer? All right, no problem. We'll just start. So, before learning this skill, I want you all to get your why very clear. Okay, before doing anything, you should be very clear with your why. That's most important thing. Okay, that why you're doing this particular thing. Okay, I see there's someone from BCA, Chandrapur. That's great. So I was talking about why your WHY, why you should do Android app development. Okay, why you should pursue this skill, because that's very important. See, you get interest, and you start something that's really nice to do something that you're interested in. But it's very important that you're clear with your why. If you have watched TVF Aspirants, a web series on YouTube by TVF, you might have seen in that the Sandeep Bhaiya, there's a character who is, preparing the lead person into this web series. He's preparing his mindset for the UPSC exam, and in there, there's an dialogue. I'll just quote it. Okay, why you should become an IS officer? Even other people can become, na. So why I'm putting pressure on this, because I want to clear your why. And today I am going to give you few reasons why you should do Android app development. Okay, so I'll just give you a very quick example of how much we are dependent on these Android applications. Let's just take a normal day of any person that is doing a job. Okay, imagine that you're a person doing a job. Okay, now uh, where your day starts. So we'll take the day start. The very first thing that you do in the morning is you snooze your alarm. Okay, you snooze your alarm clock that you set in your smartphone. Earlier we had that alarm clocks, not the non-technical ones, but today we have alarms inbuilt on our smartphones, right? So where the first thing is we snooze our alarms, we make use of app. Immediate after that, what we do is either we just glide through the Instagram, we'll skim the stories, or we'll just see quickly the news, right? Many of us have that habit कि सुबह उठते ही पहले चेक कर लिया कि भाई कौन क्या कर रहा है ना. ये हमारी
हैबिट हो गई है कि फोन चेक करना, व्हाट्सएप चेक करना. Many of people, they have the habit of checking their emails. So if you see what are these emails, these phone calls, these alarms, all these are an applications, correct? Now you wake up, you brush, you get your breakfast done and everything, and now you're late for the office. Okay, since you were using Instagram in the early morning, so now you're late for the office. Okay, this is just an imagination. Okay, I want you to imagine this scenario. Now you're in a hurry, and now, oops, okay, just a second. My cat, she's just messing up with the wires. Oh, all right. Yeah, I'm sorry. Yeah, so I was speaking about we are dependent since we were using Instagram in the morning, so we are late for the office now. Now we are in a hurry. So what we'll do if we go and try for rickshaw, they won't stop, right? Because उनको तो लंबा भाड़ा चाहिए. So now what we'll do is we'll quickly uh, either call Uber or Ola. Okay, now what are these Ola and Uber? These are also applications, right? Now you have reached your office. Okay, your first half is over, and now it's lunchtime. Okay, but then you realize you have missed your tiffin box because you were late in the morning. So now what you will do? Either you will order something from Zomato, Uber Eats, oh, the same thing, or Swiggy. Okay, now what are these things? These are also Android applications: Swiggy, Zomato, Uber Eats. Now your lunch is over, it's your second half. Okay, you're doing your work in the second half, and after your second half is done, you and your colleagues, you're deciding to let's chill tonight. And one of your colleagues suggested, okay, let's watch this movie, this is a great movie. Okay, or let's go for some stand-up comedy. So now what you will do, you will search for tickets. Now you won't go into a theater and okay bhaiya do ticket dena. Nowadays no one do that. What you will do, you will go to Book My Show or any other application like Paytm, and you will book tickets over there. Now, what are these things? These are also Android applications. Now you come back home and you sleep. Now the next day you feel a little bit tired, okay, and you think that you want to shop something just for yourself. Okay, you got your salary and you want to spend something for yourself. So what is the first thing you will do? You'll go on Amazon or Flipkart, or you will buy something for you on Mintra. So what are these? These are also applications. If you're hungry, you what you will do? You will order from Zomato. If you're if you're craving for pizza or burger, what you will do? You will go to Domino's app and you'll just order it. So if you see the why I'm saying you all these things, if you see in this entire scenario, that is real life scenario, you're dependent on applications so much that if I remove the part, that application part from your life, your life will get vacant or you will feel void. There's some void in your life. If you see a day of a student, you get up early in the morning, you hit the snooze button 10 times, okay, before getting up. I know that. Even I do the same. That's fine. That's completely fine. Now you have to join the lectures. Now, what will you do to join the lectures? You will directly jump to Zoom or Google Meet. Even if you're not brushed, that's fine. You'll just start the app, you will join the meeting, and then you will leave. Okay, I think most of them have done that only, right? But that's fine. Okay, that's what you do. You're dependent so much on applications. So if we remove this thing, there's a void in that. So you see, this is how much we are dependent on Android applications or smartphones. Okay. Now, in this scenario, if you're a person with the, with good observation skills, you see there are two people. One who is using that smartphone, using that application, people like you, and two people like us who has created that application and we are earning just because you're using that application. You're ordering from Zomato, who is earning? People, the company Zomato is earning, right? And what is Zomato? Is nothing but an app based company. If you if you see, where was this Amazon first created? Is there any Amazon retail center? There were no retail centers till 2019. Okay, after that they opened shops in USA. But if you see, entire operate Amazon operated it entire business online. Okay, if you see Flipkart, there are no retail stores. Just like Reliance Jio, Reliance Smart has its retail stores like Future Bazaar, Future Group, Big Bazaar. They have the retail stores, but businesses like Amazon, you see Flipkart, Zomato. Zomato has no retail stores. Okay, they have
their application, and they have tie-ups with the hotels, right? They're not Zomato people, they're individuals. But Zomato is a billion-dollar company. uh, I don't need to mention that Amazon is the top company. If you see the companies like Paytm, they are earning in millions and billions. You see Zerodha nowadays. Cred is also another unicorn startup. So if you see, is there any retail shop of Cred? Just point me out that thing. No, there isn't. If you see, even without a physical store, this businesses has a turnover of crores and crores. Now, how is this possible? This is the power of going online, not just applications, but going online. And if you see why applications play a major role, I'll tell you. If you want to purchase something, अगर आपको कुछ खरीदना है, या तो क्या आप वेबसाइट पे जाके सर्च करोगे www.amazon.com और फिर वहां पे जो तुम्हें परचेस करना है वो देखोगे लॉग इन करने के बाद, या फिर आप अपने ऐप में वो फोन में वो ऐप ओपन करोगे? व्हाट विल यू डू? यू वोंट गो ऑन वेबसाइट एंड सर्च फॉर Amazon वेबसाइट and then search over there. Instead, you will go on to your app and you will search the product over there, right? That's a normal user behavior. If you notice, the customer behavior has shifted from going to the store, from going out of their house to going to the app. Okay, if you see, this shift has brought a lot of money into these businesses. Okay, this shift has poured lot of money into these big businesses like Flipkart, Amazon, Uber, Zomato, YouTube. Okay, businesses like Google. Now, I said about two people: the one who is using the app and the one who is developing this app. Right? People like us, developers, we develop the application and earn through it when you use. So, what do you want to become? You want to become just a user and give your money, or you want to become a developer and earn money? What's your preference? I just want you to put it in the chat window. See, there's a lot of money in this online businesses, and I just said you the customer behavior is shifting towards application. There's a reason why. I'll tell you this why also in the last. By the end of this seminar, you'll understand this, that why we prefer applications more over websites, right? So now we understood कि क्यों इतना important है, why it is so much important to learn this skill. Okay, this is one of the most demanding skill currently in the market. Okay, it has ever been an demanding skill, and it will be. Okay, and it's not like if companies like Whitehead Junior they came into the market, it's not like the demand for Android developers will go down. Okay, and also Android app development. Now we'll go into the deep part. How now we just saw why you have to do Android app development. Now we'll see how. Okay, आप कैसे करोगे, आप क्यों करोगे, ये तो आपको समझ गया. अब कैसे करोगे इसके ऊपर थोड़ा समझ ले. तो inside app development there are basically two different fields. Okay, I'm not showing you some boring PPTs. I want this to be a little bit of fun. Okay, if you see inside app development, there are basically two categories. The first one is Android development and iOS development. Okay, in Android development and iOS development, I'll just explain you why these two things are different. If you see, Android apps won't work in iOS. Okay, iOS apps won't work in Android. That's very clear. You have to develop separate applications for Android and iOS. Okay, because these are only two operating systems that is available in smartphone industry. Okay. Now, to become an Android developer, you need to learn Java or Kotlin as a programming language. If you want to do iOS development, you have to learn Swift to develop applications for iOS. Okay. Now, we'll go deeper into these technical terms a little later on. I just want to give you the money aspect कि भाई इसमें पैसा कितना है, क्योंकि see, we start learning a skill, and why do we learn particular skill? Just because we enjoy that learning? No, isn't it? That's not the reason, right? We learn something so that we can earn, we can be a better person, we can improve ourselves, right? So if you learn this particular skill, how much can you earn? I just want to give you a glimpse of that. Before showing that, what are the ways you can learn? ठीक है, हम सारी चीजें एक बाय एक
एक एक करके देखेंगे. We'll see everything. How much you can earn and how you can earn. Okay, what are the ways you can earn? Now the two major ways you can earn. The first way is job, and the second way is by developing applications. Okay. Now inside job, it depends whether you are doing a job in MNC or is it a startup or is it your own startup. Okay. And the second way is freelancing. And if I have to tell you how much money is there in freelancing, I just want you to go on Fiverr and search for the app developers. Okay. And look for the top developers and how much they charge for just a single app. You will get shocked to see that for a single application, an experienced developer can charge you around 5,000 to 10,000 US dollars. Okay, this much you can easily charge if you have experience and you have mastered this skill. You can easily charge this much. Okay, this is the amount that is being spent for a single application in the market. Okay, and I'm not saying this, you can go and search on Fiverr or Freelancer or Upwork.com. Okay, there are websites available and they show you the rates of the developers, freelancers. Okay, they show you the rates openly in the market, so you can go and research over there. If you go for a job, okay, if you're thinking for a job, let's do a job in Android app development. If you go in MNC, if you go in some MNCs, you will get anything starting from 50,000 Indian rupees. Okay, if you go for startups or smaller companies, you can get anything around 30 to 50. Okay, that's the budget of small scale companies. If you join Geo is one of the biggest company in India, Reliance. So if you go for Geo offers 50,000 per month to the fresher. I'm talking about enhanced salary. Okay, and I'm not just throwing anything in the air. uh, I know, I even applied for Geo. Okay, so I know that how much they pay. So Geo pays a good amount for app developers. Okay, the fresher app developers. Okay, so money to बहुत है, पैसा तो बहुत है. If there's one more way how you can earn, if you launch your own application. Okay, if you think of doing your own startup, if you're an entrepreneur guy like me, and if you're thinking of making some application and you can earn as much as you want from these apps. I said you earlier also, apps like Zomato, companies like Zomato, Cred, Uber, what are they? They don't have their actual physical existence. They don't have actual physical product. They just have their applications, and within their applications, they have the valuation of billions and trillions of billions dollars. Okay, not trillions. They have millions and billions of dollars valuation. You see, Byju actually has the product, but they market when they started marketing through the application, the revenue increased. Okay, if you see earlier in 2013-14, Byju's used to sell their courses in SD card. Okay, and they were not so popular at that time. But if you see, everyone in India knows about Byju's. They know about Whitehead Junior. That's fine, even if because of controversy. But if you see, Byju is the sponsor of Indian cricket team. Okay, that much money they have. Their valuation in billions. Okay, they have investors from all over the world. So if you see, if you want to start your own startup, is it is also very important to have someone who knows app development. So this skill will help you in this way or that. कोई भी तरीके से ये आपको हेल्प तो आने वाली है, इतना तो क्लियर हो गया. Either आपको जॉब करके, if you want to earn money through job, you can do that. If you want to earn money through freelancing also, you can also do that also. If you're planning to do your own startup, or if you're planning to join a startup, you can even do that. For that, you can make use of the skills. So this skill has lot of worth for it. So that was the money aspect of this particular app development. After you become a developer, if you ask me कि मैं कितना कमा सकता हूँ or how much I can earn, if you ask me that question, uh, I'll I'll just answer you in one word. It depends on you. How much you can work, how much you can do projects, how much freelance you can do, or how deep is your knowledge about entrepreneurship. If you're doing your own startup, okay, how much you can do, it totally depends upon you. You can easily earn minimum, I can say, if you're looking for some job, you can easily earn
30-40,000 is that's good amount of money for a fresher app developer. Okay, if you go for internships, you will if you go for internships in a companies, you will get 10,000, that much you can earn, like in part time. And if you're going to for full time job, you can, I said, you can easily earn that much money. नाउ वी सॉ द मनी एस्पेक्ट. नाउ लेट्स सी कि अब ये करते कैसे, भाई ये सीखे कैसे, ये स्किल मुझे सीखनी है. नाउ यू वांट टू लर्न दिस स्किल, बट हाउ टू लर्न. So we at Skill Vertex, we also provide courses related to app development. If you want to know more about it, you can contact us after the webinar. But the concern right now is how what all things you have to learn now. Okay, in Android app development. So as I said, the basic requirement to learn this, first you will have to choose whether you want to go for Android or iOS. Okay, पहले तो आपको decide करना होगा आपको Android पढ़ना है या iOS पढ़ना है. Android is free and open source. It is owned by Google. Okay, and it is the most widely used community. I want to tell you a quick fun fact. Do you know that more than 80% of the smartphone in the entire world runs on Android? Okay, so you see, the market is very huge. Okay, the demand is very big, the market is very huge, and there are less developers like us who are working on app development. Okay, there is demand for developers. Okay, and there will always be demand for developers in the market. So it's an evergreen. Even if there are websites that can जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप करके ऐप बना लो, उससे तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है. कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा एंड्रॉइड डेवलपर्स को उस चीज से. ठीक है, जैसे कंपनीज आ रही है और वो क्लेम करती है कि बिना कोडिंग के हम ऐप बना के दे देंगे, बट टू बी ऑनेस्ट, टू बी वेरी ऑनेस्ट, उनसे आप सिर्फ एक प्रोजेक्ट लेवल के एप्स बना सकते हो. ठीक है, आप मेरे को कोई भी ऐसा ऐप बता दो जो व्हाइट रेड जूनियर ने बनाया, जो बोलते हैं ना, जो इंडस्ट्री लेवल पे वर्क कर रहा हो, या कॉर्डिलर का कोई ऐसा ऐप बना दो, या कोई ऐसे जो टूल्स होते हैं जो ड्रैग एंड ड्रॉप करके एप्स बनते हैं, उस ऐप के बेस्ड पे कोई भी एक कंपनी बता दो कि किसी कंपनी ने उस ऐप को यूज किया हो. जस्ट गिव मी एनी वन एग्जांपल. ओके, that it is very difficult to scale up the application when you develop it on such tools. Okay, there are a lot of limitations on that, and please, you can go over there if you want to do some fun in making applications. Okay, if you're a beginner, or these things are for students that are in 10th or 12th, or earlier than that. But if you are into graduation, if you have done your graduation, and if you want to really go into this industry, I'll tell you, first go for Android. Then if you want, you can learn iOS also. Now I said, if you want to do app development, you have to choose either side, Android or iOS. है ना? I said for Android you have to use either Java or Kotlin. Now what are Java and Kotlin? These are programming languages. These are the basics, the building blocks of Android app development. And iOS ka building block is Swift. Okay. Now, is there any way कि कोई बीच का रास्ता हो कि भाई एंड्रॉइड भी हो गया, iOS भी हो गया? ये सवाल उठेगा, बिकॉज इट्स वेरी हेक्टिक टू लर्न जावा फर्स्ट एंड आफ्टर दैट लर्न आयोनिक, आई एम सॉरी, स्विफ्ट फॉर डेवलपिंग एप्स फॉर iOS. It's really painful for a developer. Okay, so as a developer we always find for shortcuts or things that we can do quickly. So there's an option for that also. There's a technology that is introduced in the market known as Flutter. Okay, there are technologies like Flutter, React Native. These are very popular. They're booming right now. Okay, in industry they're booming. Now what are these? The concept of Flutter is one code base, multiple apps. मतलब एक ही कोड पे एंड्रॉइड भी, iOS भी. वंडरफुल, राइट? क्योंकि झंझट के खत्म, दो कोड लिखने की जरूरत ही नहीं, एक ही कोड पे दोनों चीज हो रही है. Using single code, you can run that app on Android as well as iOS. So these are the upcoming new technologies that are in the industry. Flutter and React Native, you can do from both. These are known as hybrid app development. Okay, if you want to just go for Android, it's called as native. या तो Android और iOS, सिर्फ Android करना है या सिर्फ iOS करना है, that is known as native app development. And if you want to learn both the things together, it's called as hybrid app development. So first, let's deep dive into native app development.
What are the prerequisites of native? Just give me a second. I'm just finding something for you. Yeah. So let me share my screen. A tab. Yeah. So I hope you can see my screen. So I just want to give you an, you know, I want to deep dive into Android right now. Okay, native Android development. Now let's just see what is Android. See, ये सब थोड़ा boring होगा. Android क्या है? तुम्हें सबको you all know what is Android. Android is an operating system. It is an ecosystem where you can uh, bring so many things, like you have smartphones, you have smart watches now, you have smart TVs these days. Smart TVs also can run Android applications. You get integrated applications like Netflix is there, YouTube is there inside smart TVs. Now if you see, Android is going everywhere. Wherever you go, you can see Android. Even in your car, okay, in your vehicle, you see you have the little tablets embedded on it, and you can use Android over there. Okay, you can even download applications for tablets. So Android is an ecosystem. It's everywhere. Okay, as I said, 80% smartphones in this world work on Android. Okay, there are TVs, smartphones, cars, and I want to give you another fun fact. Okay, आज सुबह से लेकर अब तक 3,000 एप्स ऑलरेडी प्ले स्टोर पे अपलोड हो चुके हैं, सिर्फ आज की बात कर रहा हूँ. डू यू नो दिस दैट एवरी डे मोर देन 3,000 एप्लीकेशंस आर बीइंग अपलोडेड ऑन प्ले स्टोर. जस्ट लुक एट द वॉल्यूम. कितना सारा ऐप है, मिलियंस, 2 मिलियन एप्लीकेशन आर ऑलरेडी देयर ऑन प्ले स्टोर, एंड 3,000 एप्स आर अपलोडेड डेली. That's crazy. The demand is very huge for Android applications as well as developers. Now these are some examples of uh, okay, for developing Android, what exactly you need for developing Android applications. बट आपको चाहिए क्या भाई? सबसे पहले तो आपको चाहिए रहेगा एंड्रॉइड स्टूडियो. अभी एंड्रॉइड स्टूडियो क्या है? अगर आप नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड से, डोंट वरी, आई एक्सप्लेन यू इन द सिंपलेस्ट form that is possible. I'll explain you in the layman language. Okay, so you want to develop applications. To develop these applications, you will require an IDE. Android Studio is an IDE. Now what is an IDE? IDE stands for Integrated Development Environment. Okay, this IDE will give you tools and resources to build your application. Okay, this is a place, or else this is a software where you can develop your applications for Android. Okay, for Android app development, we have IDE as Android Studio. Okay, you can easily download it from website. It's it's freely available. It's open source. Now you all know about Google Play Store, right? Google Play Store is the biggest marketplace for application development. All the apps are available on Play Store, and to purchase the license of the Play Store, you will have to give a minimum fee of $20 for the only one time. Okay, it's not recurring. You will have to pay $20 for first time, and after that you can use Play Store for lifetime, and you can upload as many applications as you want. Okay, and I just want to burst a myth right now. Okay, many of people think that they developers earn money on basis of downloads. जैसे यूट्यूब पे क्या होता है, व्यूज के ऊपर पैसे मिलते हैं, बट एप्लीकेशन में ऐसा नहीं होता है. इन केस ऑफ एप्लीकेशन, यू डू नॉट अर्न ऑन बेसिस ऑफ डाउनलोड्स. ओके, you will earn by integrating ads, advertisements inside your application, or by creating a paid application. If you see, there are a lot of paid applications that are available in the market, right? Many applications are paid. So you can either upload your app as a paid app, or you can integrate an ad inside this software. And there are many other ways you can sell it on subscription basis, like Byju's do. So there are many ways how you can earn through an application. Okay, so just Android platform architecture, just a little bit of technical about कि Android actual में work कैसा करता है. Android is based on Linux system. Okay, it is based on Linux based kernel.
And don't go deep into this. Just understand there are two types of apps: system apps and user apps. System apps are those apps that comes pre-built with your smartphones, okay? And then user apps are something that you can download from uh, Play Store, okay? For example, SMS is a system app, and user app can be WhatsApp or Facebook or Instagram, okay? And now there are different versions. The versions of Android like Marshmallow, Nougat, Oreo, Pie, the Q. Now the latest version is Android 12, and it is named as Snow Cone. Yes, it is named as Snow Cone, and it is in the beta version right now. Okay, if you see, it just launched in the last month only in the Google I/O. They announced the Android 12, so it is in the beta version. You see, every year there's a new version of Android. अब यह हमें इससे क्या फर्क पड़ता है? With every versions of Android, there are new features that are being implemented in each and every version. So we have to get updated with the knowledge that is available in the industry. For example, Android 12 जब लॉन्च हुआ तो काफी सिक्योरिटी कंसर्न्स पे बात उठी. जैसे अगर आपके इफ योर ऐप इज यूजिंग योर कैमरा और if it is using your microphone, so it will have to give a symbol on the status bar that it is using camera or microphone. Secondly, it cannot use camera and microphone in the background, okay, for security concerns. There were a lot of concerns related ke Instagram हमारी बातें सुनता है. There were myths, rumors about this. If you speak anything on phone, the other day you get ads related to that. That's just a myth. That's not true. Instagram cannot access your microphone in the background. Okay, whenever it want, it cannot, because in the latest updates, they have, the user can only use the resources when the developer can only use the resources when the user allows them to do. Okay, they cannot use it on their own. So you will have to stay updated with the market, what's currently there in the market. नाउ व्हाट आर द प्री रिक्विजिट्स? चलो ये सीखने के लिए हमें क्या क्या करना पड़ेगा, ठीक है? सी टू लर्न एनीथिंग, द वेरी फर्स्ट थिंग दैट यू नीड इज टाइम, एनर्जी. ओके, टाइम लगेगा, एनर्जी लगेगी, डेडिकेशन के साथ टाइम. ऐसा नहीं कि हफ्ते में एक दिन क्या, ओके, यू विल हैव टू कंसिस्टेंटली डिवोट योर टाइम इनटू दिस स्किल्स. हाउ मच टाइम? So I'll tell 1 month is enough to learn this skill. Okay, and after that it depends on you how much time will it take to master that particular skill. But within 1 month I can teach you Android app from scratch to intermediate. Okay, like you will be able to make your own chatting application. I can make you that strong. Just a second. Thank you. So time कितना लगेगा? It will take minimum 1 month time to learn and start developing applications. अब सीखना क्या क्या पड़ेगा? What are the things that you will have to learn? So there are two prerequisites: Java or Kotlin. Okay, currently the industry is working on Kotlin. Everyone is switching on Kotlin. What is Kotlin, Java? They are nothing but programming language. You will have to learn Java or Kotlin, and that's absolutely fine. The programming language itna simple hai. I'll tell you one story. When I was applying for jobs, okay, I was applying it on LinkedIn. So I found a guy, a startup guy. Okay, he was the co-founder, and he was an Android developer. Okay, so I went through his profile. He was the co-founder, so I went through his profile, and I was really amazed to see that he was in CA. Okay, he was in CA. He is in CA. He is in CA. He completed his computer, CA, and after that he entered into this field, application development, and now he has his own startup, okay, based on that application based startups. Okay, so I was pretty amazed by his profile. So I just applied for that startup. I sat in interview, and I asked him कि ऐसा क्या हुआ, तुम सीए में भी तो पैसे कमा रहे थे, यू वर अर्निंग इन सीए, राइट? सीए अर्न अ गुड अमाउंट in India. Why did you come into this field? Why are you want to become an Android developer? Why? So he said, see, इट्स नथिंग लाइक एक सीए ऐप डेवलपर नहीं बन सकता, ऐसा तो कोई रूल नहीं है.
और मैं ऐप डेवलपर इसलिए बनना चाहता था क्योंकि मुझे खुद का स्टार्टअप करना था, एंड आई डिडंट हैव एनी co-founder who is an developer, so I learned the thing myself within 3 months and I started my own startup. सो आई वॉज रियली इम्प्रेस्ड के मतलब आप देखो एक बंदा जो नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड, एक सीए है, जब वो एक ऐप डेवलपमेंट सीख सकता है तो आप क्यों नहीं सीख सकते? क्यों? मतलब कोई ये ही नहीं है, कोई रीजन ही नहीं है, ना बोलने की कोई रीजन ही नहीं है। आप मुझे बहाने नहीं दे सकते कि आई एम फ्रॉम नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड, आई एम फ्रॉम आर्ट्स, आई एम फ्रॉम कॉमर्स। आई एम टेलिंग यू माय स्टूडेंट्स कम फ्रॉम डिफरेंट फील्ड्स, ओके। आई इवन taught students from BCom. They are doing BA, but they are interested into these fields. Okay, they are interested in to learn these skills and to earn. Okay, maybe because they want to just explore this field, or they want to do their own startup, or they just have an idea that they want to implement. Okay, so there may be many reasons, and I know that's why you are here to learn about Android app development, right? And you are on the right place, and we are on the right track. Okay, so to do that, first you will have to learn Java or Kotlin. I would say I would prefer learn Kotlin over Java. And there's something called as XML. Don't worry about XML. XML is used for UI designing. Okay, and you do not need to learn that differently. You will understand it within the course itself. Okay, while we are learning Android app development, I'll teach you XML also. So there's no point of concern. अब जावा या कॉटलिन, दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट कंफ्यूजन इन द मार्केट। जावा करे या कॉटलिन करे, जावा करे या कॉटलिन करे। So I'll give you an advice. Listen this carefully. Currently, Google has announced Kotlin as their source language into app development. Okay, गूगल ने अनाउंस कर लिया है कि वो कॉटलिन यूज करेगा ऐप डेवलपमेंट के लिए। सो इट्स बेटर यू गो फॉर कॉटलिन। ओके, अब डायरेक्ट कॉटलिन सीखो, कोई बात नहीं, जरूरत नहीं कि तुम पहले जावा सीखो फिर कॉटलिन, नहीं, ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं, डायरेक्ट कॉटलिन सीखो, कॉटलिन पे ऐप डेवलपमेंट करो। ठीक है, अब ये दो चीजें हैं, कॉटलिन और एक्सएमएल, बस दैट्स इट, यही तुम्हारी प्री रिक्विजिट है, इसके अलावा तुम्हें कुछ नहीं चाहिए। ठीक है, अब कुछ चैलेंजेस है एंड्रॉयड ऐप डेवलपर्स के, कुछ चैलेंजेस होते हैं, कुछ बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं, ये सारी थोड़ी टेक्निकल चीजें हैं। थोड़ा सा मैं तुम्हें इंट्रोडक्शन दे देता हूँ इस चीज का। तुम कलर्स, ऐप में कलर्स डाल सकते हो, फॉन्ट्स डाल सकते हो, टेक्स्ट डाल सकते हो, बहुत सारी चीजें डाल सकते हो, है ना। एक्टिविटीज होती है, सर्विसेज, हेल्पर क्लासेस, बहुत सारी चीजें होती है। तो ये सब चीजें हम ट्रेनिंग के अंदर देखेंगे डीप डिटेल्स में, क्योंकि अगर अभी ये सब लेने जाओगे तो बहुत लंबा हो जाएगा, है ना। So that's it about Android app development, how you can learn what are the things in Android app development. Now, this is about Android app development, है ना. I was talking about two more things, iOS and Flutter. Okay, if you want to learn Flutter, Flutter is also free and open source, and Flutter was introduced in 2018. Okay, if you're already from a technical background, if you're from if you're a web developer, so you don't go Flutter, don't go for Flutter. I would suggest go for React Native. If you're an app developer, or if you already know Java or Kotlin, go for Flutter. Flutter will be easier for you. Okay, you can do React Native also, but to do React Native, you will have to learn three different technologies: HTML, CSS, JavaScript, and React. Okay, after that you can do React Native. So you see, doing React Native has a process before doing that. So if you're already a web developer, or if you know a little bit into website development, go for React Native because that's familiar with your field. If you're a Java developer or a Python developer, okay, if you can code in Java or Python, go for Flutter development. Okay, if you want to do hybrid. So this is introduction about Android and app development. If you want to know more, if you want to learn this particular skill, okay, it can't be taught in 1 hour. Okay, Rome was not built in a day. It requires time. Okay, एक महीने का डेडिकेटेड टाइम तुम्हें मुझे देना होगा। एक महीने में मैं तुम्हें इस लेवल तक तो पहुंचा दूंगा कि तुम खुद के एप्लीकेशंस बनाना स्टार्ट कर लो। ठीक है, मैं तुम्हें ये भी सिखाऊंगा क्या कैसे एप्स को प्ले स्टोर पे अपलोड करते हैं, कैसे उससे रेवेन्यू जनरेट करते हैं। मैं तुम्हें ये भी सिखा सकता हूँ कैसे तुम फ्रीलांस करके पैसे कमा सकते हो, है ना। फ्रीलांसिंग बहुत बड़ी मार्केट है, एंड यू विल गेट शॉक टू नो दिस कि फ्रीलांस जो इंडस्ट्री है वो $1 ट्रिलियन टच कर चुकी है। ठीक है, ये इंडस्ट्री $1 ट्रिलियन में जा चुकी है ऑल ओवर द वर्ल्ड में।
आज यूएसए और कनाडा जैसे बड़ी बड़ी कंपनी, बड़ी बड़ी कंट्रीज में जो लोग हैं वो ऑलरेडी शिफ्ट हो चुके फ्रीलांस की तरफ। ओके, और ये ट्रेंड अभी इंडिया में आ रहा है जब से लॉकडाउन हुआ। तब से अब देखो बहुत सारे फ्रीलांसर्स का बर्थ हुआ है, बहुत सारे लोग फ्रीलांसिंग में जा चुके हैं, तो बहुत बड़ी इंडस्ट्री, बहुत स्कोप है, बहुत डिमांड बहुत ज्यादा है। ठीक है। और दूसरी एक चीज कि डेफिनेटली फ्रीलांस में पैसा भी है, और एक और बेनिफिट है फ्रीलांस में कि आप खुद के हिसाब से काम कर सकते हो और खुद के हिसाब से पैसा चार्ज कर सकते हो। ठीक है, तो फ्रीलांस के लिए भी आप ये स्किल सीखो और वर्क करो, डेफिनेटली यू आर गोइंग टू अर्न। थोड़ा बहुत स्ट्रगल पीरियड होगा हर चीज में, एक महीने का स्ट्रगल पीरियड तो होता ही है। आप एक्टिंग देख लो या आप जर्नलिज्म देख लो, आप कोई भी फील्ड ले लो, कोई भी फील्ड ले लो। ठीक है, टीचिंग ले लो, कोई भी फील्ड, एक महीने का आपको स्ट्रगल पीरियड तो होगा, बट उसके बाद डेफिनेटली गोल्डन पीरियड भी आएगा जहाँ पर आप अच्छा खासा अर्न कर रहे हो, आप सेट हो सकते हो इस स्किल के बदौलत। ओके। एंड वन मोर थिंग, ये स्किल इसलिए भी सीखनी चाहिए क्योंकि आप इसमें वर्क फ्रॉम होम कर सकते हो। ठीक है। आप अगर देखो तो इस लॉकडाउन के कारण बहुत सारे लोगों के जॉब्स गए है ना। आपने अगर देखा होगा तो बहुत सारे जॉब्स चले गए, बट अगर आपने ये नोटिस किया होगा तो इसी लॉकडाउन में बहुत सारे जॉब्स क्रिएट भी हुए इस सेक्टर के कारण। अगर आप टिकटॉक देखो तो टिकटॉक के आए बहुत सारा टाइम नहीं हुआ, लॉकडाउन में बहुत ज्यादा वो बूस्ट हुआ। इंस्टाग्राम ने भी रील्स ला दिया, यूट्यूब ने भी शॉर्ट्स ला दिया, तो ऐसे बहुत एप्लीकेशन है। जैसे क्रेड था, पहले भी था, पर अभी बहुत ज्यादा फेमस हो रहा है। जैसे अन अकेडमी बहुत बहुत बूम कर रहा है, इट्स बूमिंग राइट नाउ। ओके, व्हाई? because these are the some of the applications that are, they are operating into lockdown, and they are, generating good amount of money। बायजूस ने जितना पैसा पिछले एक साल में नहीं, मतलब जो लॉकडाउन पीरियड में जितना कमाया, उतना पैसा वो पिछले उसके 3 क्वार्टर्स में भी उसने नहीं कमाया था क्यूमुलेटिव। उतना पैसा उसने एक साल में ही कमा लिया है, उसका टर्नओवर इतना बढ़ गया। तो कहने का मकसद ये है कि ये जो स्किल है डेफिनेटली आपको सीखनी चाहिए, मैं एनकरेज करूंगा सीखो। बहुत डिमांडिंग है, मनी वाइज भी और स्टेटस वाइज भी। अगर आप फ्रीलांस कर रहे हो, अपने हिसाब से आप वो पर्सन हो कि भाई नहीं, मेरे को अपने हिसाब से काम करना है, अपने हिसाब से पैसा चार्ज करना है, तो भी आप कर सकते हो। अगर आप एक स्टार्टअप गाय हो, अगर आपको ऐसा है कि नहीं यार मेरे को खुद का स्टार्टअप करना है, तो भी आप कर सकते हो। आई एम सॉरी। ओके, सो दैट्स एवरीथिंग अबाउट app development, the introduction to app development. If you have any doubts related to this, you're open, you can ask me anything. Don't be shy, ask as much as you can. Okay, even if it is related or non related, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में भी फ्रीलांसिंग है। करेक्ट, हर चीज की फ्रीलांसिंग है और काफी ज्यादा बूम कर रही है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। यस, सो इसमें डाउट कुछ? नाउ इट्स योर टर्न, इट्स योर टाइम टू स्पीक। ओके, आपको जो भी डाउट्स है आप क्लियरली पूछ सकते हो। आई एम हियर टू क्लियर योर डाउट्स। Hi Hussein. हाय तेजल। Hussein, I want to ask about the freelancing jobs. हम्म। Actually, I was trying to do freelancing, but I was not able to do that because I don't have knowledge about freelancing. ओके, How to approach in freelancing, which app is suitable, which मतलब आप समझ रहे हो ना कि कैसे प्लेटफॉर्म उसको शुरू किया जाए, तो मुझे उसके बारे में थोड़ा जानना था। करेक्ट। ठीक है, तो ये जानने से पहले कि फ्रीलांसिंग कैसे करें, आई वांट टू नो कि आप कौन से फील्ड में फ्रीलांसिंग कर रहे हो। सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग। ओके, सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग में। ठीक है, तो अब मैं आपको बताता हूँ। फ्रीलांसिंग सबसे पहले तो जॉब नहीं है, ये फ्रीलांसिंग एक अलग ही टर्म है। आपको फ्रीलांस करना है तो वेबसाइट्स काफी अवेलेबल है। जो दो तीन जो मैं प्रिफर करता हूँ वो है फाइवर, अपवर्क। ओके, ये है ऑनलाइन तरीके। अब मैं देखो आपको एक और तरीका बताता हूँ, ऑफलाइन ऑप्शन। ओके, आप क्या कर सकते हो, बिकॉज ऑफ लॉकडाउन यू सी देयर आर लॉट ऑफ बिजनेसेस दे वांट टू गो ऑनलाइन। ओके, दे वांट कि वो अपना ऑनलाइन प्रेजेंस बनाए, दे वांट देयर ओन एप्लीकेशन। आप मानोगे नहीं, लिटरली लास्ट 1 मंथ में मुझे 3 प्रोजेक्ट्स मिले ई कॉमर्स रिलेटेड। मतलब सुपर मार्ट्स है या रेस्टोरेंट्स है, ऐसे लोग अप्रोच करते हैं और कहते हैं हुसैन आई वांट टू डेवलप दिस एप्लीकेशन फॉर मी,
कितने में करके दोगे और कितना टाइम लगेगा। ओके, सो मुझे सामने से जाने की जरूरत नहीं पड़ रही है, क्लाइंट सामने से आ रहे कि मेरे को ये चीजें चाहिए, मुझे करके दो। ठीक है, तो थोड़ा सा अप्रोच शिफ्ट हो चुका है मार्केट का एप्स और वेबसाइट्स को लेकर। इसके पहले मैं आपको बता दूं, इसके पहले भी फ्रीलांसिंग हो रही थी, बट उतना टर्नओवर नहीं था, उतना वैल्यू नहीं था इस इंडस्ट्री में। बट जैसे ही लॉकडाउन आया, सभी को रियलाइज हुआ कि नहीं यार, ऑनलाइन प्रेजेंस होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बिकॉज इफ यू सी इन दिस लॉकडाउन, the businesses that were online, they were operating on the full scale. If you see, I'll take example of Byju's, because this is one of the biggest example that has gained the amount of growth that you can't even imagine. Byju's is the Zomato. They were shut for few months for the initial the initial lockdown, but after that they were operating in full fledged. If you see Amazon, Flipkarts, if they were not able to deliver luxury goods, they started delivering essential goods, right? So everyone realized कि भाई ऑनलाइन जाना ही एक सॉल्यूशन है इस बिजनेस को ग्रो करने का। तो फ्रीलांसिंग की ऑनलाइन अपॉर्चुनिटी तो डेफिनेटली फाइवर, फ्रीलांसर, अपवर्क, ये तीनों है। अभी आपको जॉब कैसे मिलेगा, मतलब आई मीन जॉब वर्क, जॉब या वाला जॉब कैसे मिलेगा? तो इसके लिए सबसे पहले आपकी प्रोफाइल ऑप्टिमाइज्ड होनी चाहिए। अब व्हाट डू आई मीन बाय ऑप्टिमाइज? सी, जब आप किसी पे बिड कर रहे हो, ठीक है, जब आप किसी प्रोजेक्ट के लिए बिड कर रहे हो, तो सबसे पहले क्लाइंट आपका क्या देखेगा कि भाई ये बंदा है कौन, ये बंदा या बंदी ये है कौन, ठीक है, इसके प्रीवियस वर्क्स क्या है, इसने क्या क्या काम किया है, इसके रेट्स क्या है, इसका डिलीवरी टाइम क्या है, इसका रिस्पॉन्स टाइम क्या है, ठीक है। फिर इसके रिप्लाईज कैसे है, इसके प्रोफेशनलिज्म कैसा है। जैसे आप जब कमेंट कर रहे हो, बिड कर रहे हो, तो आपका एक तरीका होता है, एक लैंग्वेज होता है, आपको वो सब चीजें सीखनी होगी, वो सुधारना होगा, कि प्रोफेशनलिज्म लाना होगा। सेकेंड चीज, ये एक बहुत बहुत कम फ्रीलांसर्स ऐसा करते हैं। व्हेन यू आर इन टच विथ एनी क्लाइंट, मतलब वो आपसे रिक्वायरमेंट डिस्कस कर रहे हैं, तो आप सबसे पहले जो इंट्रोडक्शन आप कर रहे हो, तो आप मोस्ट ऑफ द पीपल व्हाट दे डू इज दे गिव एन टेक्सचुअल बेस्ड इंट्रोडक्शन, ठीक है, मतलब वो टेक्स्ट लिखते हैं, हाय आई एम दिस दिस दिस, आई कैन डू दिस दिस, आपकी क्या रिक्वायरमेंट्स है मुझे बताओ, मैं करके दूंगी या करके दूंगा, ठीक है। व्हाट यू कैन डू इज you can create a short video, okay, of yourself, 1 minute या 2 minute का video, in which you are explaining why he should give you this project and why are you fit for this project. Okay, you have to explain your previous experience, okay, and in that video you have to be very confident and very cool, and you have to show that yes, you are a you can finish this project within this much time and this much money. ये करने से होता क्या है, एक ट्रस्ट फैक्टर बिल्ड होता है दोनों पार्टीज के बीच में, और इससे चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं तुम्हें वो प्रोजेक्ट मिलने के। ठीक है, ऑनलाइन ये एक मैं तुम्हें टिप दूंगा, ऐसा करो। बाकी जो चीजें हैं तुम्हें डेफिनेटली जो तुम्हारे प्रोजेक्ट्स है वो ही हेल्प करेंगे। जितने अच्छे प्रोजेक्ट्स, जितने बड़े प्रोजेक्ट्स तुम शो कर रहे हो, उतने तुम्हें ज्यादा रिस्पॉन्सेज मिलेंगे। शुरुआत में ऐसे हम सभी प्रेफर करते हैं, इन स्टार्टिंग वी डू इट फॉर फ्री, लाइक फॉर $5 मिनिमम पेमेंट पे वर्क करते हैं। एक दो क्लाइंट्स मिल गए, थोड़े फीडबैक मिल गए, उसके बाद वी स्टार्ट चार्जिंग व्हाट आवर रेट इज, थोड़े फीडबैक्स जमा करने हो गए, तुम खुद की एक पर्सनल पोर्टफोलियो बना सकते हो। ठीक है, जब क्लाइंट तुम्हारी प्रोफाइल विजिट करे और वो चेक करेगा कि यार इसकी वेबसाइट है और वेबसाइट बहुत ज्यादा बहुत अट्रैक्टिव है, तो एक ट्रस्ट फैक्टर बढ़ जाता है ना। तो ये तुम कर सकते हो, और बहुत सारी चीजें हैं फ्रीलांसिंग में, थोड़ा सा रिसर्च करो इस चीज में। और ऑफलाइन मार्केट में मैंने जैसे तुम्हें बताया, डायरेक्ट जाओ और बिजनेसेस को अप्रोच करो कि मैं एक ऐप डेवलपर हूँ, या मैं वेब डेवलपर हूँ, या मैं सॉफ्टवेयर डेवलपर हूँ, मैं तुम्हारे लिए ये सॉफ्टवेयर डेवलप करके दे सकता हूँ। आपकी ऐसी कौन सी प्रॉब्लम्स है जिसका आपको सॉल्यूशन चाहिए, ठीक है, उनकी प्रॉब्लम समझो और उसे टेक्नोलॉजी के थ्रू एम्बेड करके उसे सॉल्व करने की कोशिश करो। क्लियर? ओके। ऑफलाइन में बहुत पैसा मिल रहा है अभी, और लिटरली जो लोकल बिजनेसेस है जिनके पास पैसा है, उनको डर है कि भाई थर्ड लॉकडाउन आ गया तो, या वापस से कंट्री लॉकडाउन में चले गए, बिजनेसेस बंद हो गए, तो हम ऑपरेट कैसे करेंगे? क्योंकि 2 लॉकडाउन के बाद ऑलमोस्ट सबकी जेब खत्म हो चुकी है, इतना पैसा स्पेंड करने के बाद बहुत कम पैसा बचा है। तो सब यही डर में है कि अब अगर वापस लॉकडाउन लग गया तो कैसे ऑपरेट करेंगे। और ऑनलाइन बहुत अच्छा ऑप्शन है बिजनेसेस ऑपरेट करने का, तो बिल्कुल ऑफलाइन भी जाओ। एक और चीज मैं तुम्हें शो करूंगा, तुम लिंक्डइन के थ्रू भी जा सकते हो। लिंक्डइन के थ्रू कैसे जाना मैं थोड़ा सा तुम्हें शेयर करना चाहता हूँ, क्योंकि ये काफी नया है और बहुत कम लोग इसके बारे में जानते हैं। Yeah, everyone trying to
contact through LinkedIn, but no one knows about that. करेक्ट, I also tried, but I don't know. करेक्ट। सो लिंक्डइन गेम जो है ये तुम्हें थोड़ी अच्छे से समझनी होगी, मतलब इसमें थोड़ा थोड़ा ज्यादा मेहनत करना होगा लिंक्डइन में, तब जाके तुम्हें लिंक्डइन से लीड्स मिलेंगी और बिजनेस मिलेगा। आई जस्ट शेयर माय स्क्रीन विथ यू। हुसैन, ऐसी एप्स में कोई फ्रॉड वगैरह का काम नहीं होता? जैसे फ्रीलांसर ऐप आपने बताई है, उसके अंदर कोई फ्रॉड वगैरह का काम तो नहीं होता है? सी फ्रॉड्स वगैरह हर जगह पर होते हैं, ठीक है। जैसे अब इसमें फ्रॉड कैसे होता है मैं आपको वो भी बताता हूँ। जैसे मैं क्लाइंट हूँ, ठीक है, मुझे ऐप डेवलप करवाना है कोई भी एक एक्स वाई जेड चीज़ के लिए, ठीक है, और मैं नया हूँ फाइवर फ्रीलांसर पे। तो ये चीज़, सभी चीज़ जो बिड्स कर रहे हैं उनको भी दिखता है कि भाई ये जो क्लाइंट है नया है, इसके पहले इसने इतना काम नहीं करवाया, इतना पैसा इसने स्पेंड नहीं किया, ये सारी चीज़ें एकदम ट्रांसपेरेंट होती है। तो आपको पहले चेक करना होगा कि ये जो क्लाइंट है इसका प्रीवियस हिस्ट्री क्या है। आप उसके लिंक्डइन पे जाकर रिसर्च करो कि भाई ये क्लाइंट एक्चुअल में जेन्युइन है कि नहीं है, इसकी जो रिक्वायरमेंट है ये जेन्युइन है। ये तो आप नहीं जज कर सकते कि अगर मैं बोल दूं कि भाई मैं बीकॉम वाला बंदा हूँ और मुझे ऐसा ऐसा ऐप चाहिए, तो ये आप तो नहीं बोल सकते कि ये सही बोल रहा है या गलत बोल रहा है। बट आप सिर्फ एक जज कर सकते हो उसके लिंक्डइन पे जाकर या उसके बारे में थोड़ा रिसर्च करके कि ये बंदा जो है वो जेन्युइन है भी या नहीं, ठीक तो है। फ्रेशर्स के लिए यहाँ पे कैसे होगा कि जैसे आप कह रहे हो कि वो प्रोफाइल चेक करेंगे? अब जैसे मैं एक फ्रेशर हूँ कि मैंने कोई प्रोजेक्ट नहीं करा, कोई ऐसे कोई कुछ नहीं किया हुआ, तो फ्रेशर्स के लिए आप क्या कहना चाहेंगे कि फ्रेशर्स को कैसे अप्रोच करना चाहिए? ठीक है, फ्रेशर्स को फ्रीलांसिंग में कैसे अप्रोच करना चाहिए, ठीक है। मैं इसको एंड्रॉयड के एग्जांपल के साथ चलता हूँ। मान लो तुम एक एंड्रॉयड में फ्रेशर हो, ठीक है, अभी अभी तुमने एंड्रॉयड डेवलपमेंट सीखा है। अब तुम फाइवर पे गए, तुमने बिट्स वगैरह लगाई, सबसे कम रेट बताए, ठीक है, फिर भी तुम्हें पैसा कोई नहीं देगा, ठीक है। शुरुआत में प्रोजेक्ट्स नहीं मिलते एंड शुरुआत में ना ही मिलता है, ठीक है, एंड दैट्स एब्सोल्युटली फाइन, क्योंकि वहीं से तुम्हें सीखने मिलने वाला है कि तुम्हें क्या करना है क्या नहीं करना है। अब जैसे मैंने बोला कि प्रोफाइल ऑप्टिमाइज करो। अब प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन में क्या आता है, मैं तुम्हें एक छोटा सा ग्लिम्स देता हूँ। जैसे मैं लिंक्डइन के थ्रू बता रहा हूँ कि कैसे प्रोफाइल ऑप्टिमाइज करोगे। जैसे अगर आप मेरी प्रोफाइल में जाके देखो, तो लिंक्डइन में जो चीजें होती है, जैसे लिंक्डइन में बैकग्राउंड बैनर है, लिंक्डइन में यहाँ पर टाइटल है, डिस्क्रिप्शन है, ठीक है, लिंक्डइन में डिस्क्रिप्शन आ रहा है, ठीक है, फीचर्ड सेक्शन है, ये मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है। कमेंट सेक्शन, एक्टिविटी सेक्शन, आपका एक्सपीरियंस सेक्शन है, ठीक है, एजुकेशन है, लाइसेंसेस है, स्किल्स एंड एंडोर्समेंट्स है, रिकमेंडेशन है, प्रोजेक्ट्स है, ठीक है, अकम्पलिशमेंट्स है, लैंग्वेजेस है। तो ये सारी चीजें सबसे पहले तो आप फिल कर लो, ठीक है, इसको एम्प्टी नहीं रखना है। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को, मोस्ट ऑफ द लोगों को मैं देखता हूँ उनकी प्रोफाइल ही अपडेट नहीं होती, उन डीपी तक नहीं रखते, एंड ये बहुत ज्यादा एनोइंग लगते हैं मुझे पर्सनली। बिकॉज अगर आप देखो, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने मुझे रिक्वेस्ट किए, अगर आप देखो उन्होंने डीपी ही नहीं रखा है, ठीक है, बहुत सारे लोग हैं उन्होंने डीपी नहीं रखा है। मेरे को एक्सेप्ट करने का मन ही नहीं करते, क्योंकि मुझे लगता ही नहीं कि वो मेरे रिलेवेंट भी है, ठीक है। बहुत सारे रिक्रूटर्स का भी मैसेज आते रहते हैं वैसे। तो अगर आप देखो कि आप नॉट, जिस बंदे ने डीपी नहीं रखा और जिस बंदे ने डीपी रखा है, तुरंत आपको डिफरेंस नजर आता है, और ऐसे लोगों को एक्सेप्ट करने का मन किसी का नहीं करता है। अभी जिसके टाइटल में किसी ने मेहनत ही नहीं की टाइटल लिखने में, तो ऐसे लोगों के साथ कनेक्शन में ज्यादा मतलब नहीं रखते हैं, ठीक है। तो प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन करो सबसे पहले तो। अब ये कैसे करना है, क्या करना है, ये हम फर्दर सेशंस में कर सकते हैं, एक ही सेशन में सारी चीजें मैं नहीं बता नहीं सकता ना, देयर इज अ हाँ जी, हाँ लिमिटेशन। जी। सो या आई प्रोफाइल, कैन अंडरस्टैंड। प्रोफाइल सबसे पहले ऑप्टिमाइज रखनी होगी। अब अभी तुम्हारे पास अगर लाइव प्रोजेक्ट्स नहीं है तो तुम क्या करोगे एज अ डेवलपर, कुछ प्रोजेक्ट्स खुद से करो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अभी कोविड ट्रैकर बहुत फेमस हुआ था, जैसे कोविड को ट्रैक करना है तो कोविड ट्रैकर ऐप बनाओ, कोई ब्यूटीफुल यूआई बनाओ, ऐसे 3-4 प्रोजेक्ट्स बनाओ जो अच्छे लेवल पे हो। फॉर एग्जाम्पल यू कैन मेक चैट एप्लीकेशन, ओके, एक ऐसा चैट एप्लीकेशन जो व्हाट्सएप का अल्टरनेटिव हो सकता है, नॉट फुल्ली बट पार्शली, मतलब एटलीस्ट गिव इट अ ट्राई थोड़ा। आप खुद से प्रोजेक्ट्स बनाओ, शोकेस करो, लोगों को दिखाओ कि भाई देखो मैंने ये प्रोजेक्ट बनाया, लोग आपको भी अप्रिशिएट करेंगे, थोड़ा सपोर्ट करेंगे, तो धीरे धीरे आपकी भी कम्युनिटी बनेगी, ठीक है, लोग आपको जानने लगेंगे। फिर थोड़ा थोड़ा करके अपने आप को प्रमोट करो कि देखो मैंने ये ऐप बनाया है, अगर आप चाहिए तो मैं आपके लिए भी ऐसा ऐप बना सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैंने क्या किया था मैं बताता हूँ। बहुत पहले मैंने एक पॉलिटिकल पार्टी के लिए ऐप बनाया था, ठीक है। तो मैं उसे कंटिन्यूअसली बहुत प्रमोट करते रहता था कि
मैंने एक पॉलिटिकल पार्टी के लिए ऐप बनाई, इस ऐप में ये फीचर्स है, मैंने ये किया, मैंने वो किया। शो ऑफ नहीं कर रहा हूँ, बट मैं शो केस कर रहा हूँ, मैंने क्या किया कि मैं शो केस कर रहा हूँ, है ना। मेडल्स को हम अलमारी में सजा के रखते हैं, नॉट अलमारी बट दैट्स समथिंग कबर्ड में सब सजाते हैं, दैट्स नॉट शोइंग ऑफ, दैट्स शोकेसिंग। तो शोकेस करो अपने स्किल्स को, आपने क्या किया उसको, आप क्या कर सकते हो उसको शोकेस करो। यहाँ से क्या होगा, आपको एक रिकॉग्नाइजेशन मिलेगा, और फिर लोग, आप अप्रोच कर सकते हो कि अगर आपको भी ऐसा ऐप चाहिए तो मैं बना सकता हूँ। और सिंस लोगों ने आपको देखा है कि आप ऑलरेडी ऐप कर रहे हो, डेवलप कर रहे हो, तो उनको भी धीरे धीरे ट्रस्ट फैक्टर बन जाएगा, और वो आपको फिर प्रोजेक्ट्स देने में इतना सोचेंगे नहीं। ठीक है, डेफिनेटली आपकी जो नेगोशिएशन स्किल्स है, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स है, वो सब पे भी आपको वर्क करना होगा। तो फ्रीलांसिंग करने के लिए डेफिनेटली आपको बहुत सारी स्किल्स सीखनी है, जैसे क्लाइंट से कैसे रिलेशन बिल्ड बनाना है, कैसे एक रेपो बिल्ड करना है। ठीक है, एक रेपो होता है क्लाइंट के बीच में, कैसे रेपो बनाना है, फिर सेल्स क्लोजिंग कैसे करनी है। जरा एक, जैसे मैं आपको एक छोटी सी चीज बताऊंगा, क्लाइंट प्रोजेक्ट कब नहीं देता है, 4 रीजन हो सकते हैं। ये तो उसको इंटरेस्ट नहीं है, ये तो उसको नीड नहीं है, ये तो उसका पैसे नहीं है, या उसको लग रहा है कि आप उसका काम नहीं कर सकते। ठीक है, तो आपको उसका कंसर्न समझना है, और फिर उसके हिसाब से बातों से आपको मैनिपुलेट करना है। आई वोंट से एग्जैक्टली मैनिपुलेट, बट थोड़ा सा कैलकुलेट करके बातें करनी है। ठीक है, बहुत एक बात मैं अपने हर सेमिनार में देता हूँ, फ्रीलांसिंग के टाइम जब बात आती है, तो जो आपके क्लाइंट्स होते हैं उसके साथ आप उतना ही मेहनत करो जितना आप किसी के साथ डेट करने पे, किसी को डेट करने जाओगे, किसी को इम्प्रेस करने जाओगे, तो कितना मेहनत करोगे ना। हाँ जी। किसी लड़की को सपोज इम्प्रेस करना है, या किसी लड़के को इम्प्रेस करना है, तो बहुत मेहनत करोगे, अच्छे कपड़े पहनोगे, अच्छी परफ्यूम लगाओगे, बाल वाल सेट करोगे, दाढ़ी अच्छे से रखोगे, चश्मा वगैरह, घड़ी वगैरह, सब चीज का ध्यान रखते हो। तो जितनी मेहनत वहां कर रहे हो, उतनी ही मेहनत तुम्हें क्लाइंट को इम्प्रेस करनी होगी। ठीक है, जैसे उसे ईमेल्स, फॉलोअप ईमेल्स लिखना के तुमने अगर कोई अचीवमेंट किया तो तुम उसे अचीवमेंट्स बेचते रहो कि देखो ये मेरे अचीवमेंट्स है। ठीक है, तुम उसे बहुत काइंडली बातें करो, ऐसी रूड बातें नहीं करी, हाँ ठीक है मैं कर दूंगा ना, हाँ इतना पैसा लगेगा, पैसा पहला नहीं रखना। तो उतना ही मेहनत तुम्हें क्लाइंट को भी देना है, ठीक है, इम्प्रेस करने को, तब जाके क्लाइंट तुमसे पटेगा। वरना डेफिनेटली कोई ज्यादा मेहनत करे वो पटा के ले जाएगा, ऐसा होता है। ओके, थैंक यू सो मच हुसैन। अ, इसके अलावा, क्योंकि हम फ्रीलांसिंग में काफी डीप में चले गए, इसके अलावा किसी और को कुछ डाउट्स है एंड्रॉयड ऐप डेवलपमेंट के रिलेटेड या कुछ और? Okay, one more thing. This is my LinkedIn, Hussain Nagodria. You can contact me later. If you have any doubts, even in future, if you think like मेरे को ये चीज पूछनी है, या ये चीज कैसे करें, या if I want to do this, how can I do that? You can, anytime come and message me on LinkedIn. I'm active on LinkedIn. Uh, Now it's doubt time, so I want you all to ask as much as doubts you can. ठीक है, इतना टाइम इन्वेस्ट किया, 1 घंटा हमने इन्वेस्ट किया है ना, तो इसमें से आउटकम भी तो आना चाहिए। तो आउटकम कब पता चलेगा, जब हम कोई चीज कर रहे हो, हम हमें उस चीज में क्वेश्चंस आने लगे। Alright, and if you want to learn Android development, you can contact us at Skill Vertex. We have our Android app development courses also. We have various different courses. To know more, you can just contact us. But other than that, app development किसी को डाउट है कुछ? No doubts. Nice. Hussein, I want to ask one last thing. Mm-hmm. Flutter is a programming language or any other app thing from there you can use code to build app or anything? ओके, सो बेसिकली फ्लटर एक टेक्नोलॉजी है। ठीक है, अब फ्लटर के थ्रू आप एप्स कैसे बनाओगे, तो फ्लटर के अंदर जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज हो रही है उसे कहते हैं डार्ट। ठीक है, डार्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ये भी गूगल की तरफ से ही डेवलप्ड है। एप्स डेवलप करने के लिए आप डार्ट यूज करोगे, यूआई भी डार्ट से बनेगा, लॉजिक पार्ट भी डार्ट से बनेगा। और जब आपको एक्सपोर्ट करना है, बेसिकली जो एप्स के फॉर्मेट होते हैं वो एपी के फॉर्मेट होता है। ठीक है, हाँ जी। हाँ, तो उसे एक्सपोर्ट करने के लिए ये एक्सपोर्ट आप दोनों में कर सकते हो। आपको एंड्रॉयड वर्जन में चाहिए या आईओएस वर्जन में चाहिए, दोनों में आप एक्सपोर्ट कर सकते हो। तो कोड बेस आपका फ्लटर, फ्लटर का जो कोड बेस होगा वो होगा डार्ट। तो डार्ट वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसके ऊपर आप काम करोगे। तो वो जावा के अकॉर्डिंग ही चलती है कि अगर जावा आती है तो डार्ट भी हो जाएगी?
देखो बेसिकली क्या होता है, मोस्ट ऑफ द प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस बहुत रिलेटेड होते हैं एक दूसरे से, ठीक है? जैसे हम ह्यूमंस हैं, हम दूसरे से काफ़ी सिमिलर है ना? हम हाँ जी। हमारे जो हॉबीज़ होते हैं, हमारे इंटरेस्ट होते हैं, बहुत बार मैचिंग होते हैं। वैसे ही प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जो होते हैं, वो भी भाई-बहन की तरह होते हैं। अगर आप जावा और डार्ट देखोगे, तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है दोनों में, बहुत सिमिलर है। अगर आप डार्ट जावा पढ़ चुके हो और अगर आप डार्ट पढ़ रहे हो, तो आपको रियलाइज़ होगा कि भई ये काफ़ी सारा जावा से इंस्पायर्ड है, ठीक है? डार्ट सी प्लस प्लस से भी इंस्पायर्ड है, कॉटलिन से भी इंस्पायर्ड है। अगर आप कॉटलिन करोगे, तो आपको सिट लिटरली ऐसा लगेगा कि ये जावा के ऊपर बनी है, बट दोनों अलग-अलग चीज़ें हैं। हाँ, ये बात है कि जो दोनों का कंपाइलर है, वो जावा कंपाइलर ही है, मतलब कॉटलिन कोड को भी जावा ही कंपाइल करता है। There's a doubt from Varsha. Only Java is needed to build Android applications, or we can use any other programming language like Python. ठीक है, बहुत अच्छा डाउट है। तो सी ऐप डेवलप करना है, एंड्रॉयड ऐप, तो एक और तरीका मैं आपको बताता हूँ। जैसे मैंने दो लैंग्वेजेस बताए, जावा एंड कॉटलिन, आप दोनों में से कोई भी कर सकते हो, ठीक है? और जो सवाल रहा आपका पाइथन का, तो पाइथन के बेस पे आप एंड्रॉयड ऐप नहीं बना सकते, बट देयर इज अ बट, यू कैन मर्ज पाइथन कोड इन एंड्रॉयड ऐप, ठीक है? आप सी प्लस प्लस का कोड भी मर्ज कर सकते हो, आप कोई भी लैंग्वेज इसे मर्ज कर सकते हो आपके कोड के साथ, ठीक है? प्योरली पाइथन पे बनाना डिफिकल्ट है, ठीक है? डेस्कटॉप एप्स बन जाते हैं, एंड्रॉयड एप्लीकेशन एज फार इतने नहीं बनते, बट अगर आपको पाइथन का कोई कोड इंटीग्रेट करना है, कोड कोई स्निपेट है जो आपको डालना है, या कोई फंक्शनैलिटी जो पाइथन में यूज करनी है, आप कर सकते हो। हाउ मेनी एप्स डेवलप बाय यू एंड विच ऑफ देम? ओके, गुड क्वेश्चन साक्षी। मैंने अभी काफ़ी ऐप्स बनाए, जो मेरे भी कुछ ऐप्स प्ले स्टोर पे है। एक एप्लीकेशन है BSc CS, आई विल शो यू। दैट्स माय मेजर अपलोड, आई विल से। और ये मैंने कब बनाया था, जब मैं फर्स्ट ईयर ऑफ मेरे ग्रेजुएशन में था, तब मैंने ये चीज़ बनाई थी। और अब कंटिन्यूसली इस पे वर्क भी हो रहा है। अगर आप गूगल प्ले स्टोर पे जाके BSc CS सर्च करोगे, तो ये ऐप रैंक करता है, ठीक है? दिस इज रैंकिंग, इट हैज़ मोर देन 10,000 डाउनलोड्स। अगर आप देखो, मैंने मेरे लिंक्डइन के प्रोफाइल में भी ये शोकेस किया है कि मोर देन 10,000 डाउनलोड्स। थोड़ा सा मैं इस ऐप के बारे में बता दूं, प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, ठीक है? फॉर काइंड इन्फॉर्मेशन, पैसे नहीं मिलते मेरे को। अब तक मैंने एड्स वगैरह वैसा कुछ नहीं किया, बट ये ऐप है क्या? Basically, it's an application for computer science graduates where they can find any and everything they want to study and learn online, ठीक है? इसको मैंने कॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया था कि आपको नोट्स वगैरह मिल जाएंगे, बुक्स, क्वेश्चन पेपर, सिलेबस, प्रैक्टिकल्स मिल जाएंगे, कोई एक्स्ट्रा नॉलेज वगैरह है तो वो मिल जाएगा, ठीक है? और मेरा मोटिव इस ऐप बनाने को इसलिए था क्योंकि मैंने एक चीज़ रियलाइज़ की, ग्रेजुएशन में आते-आते ना हम बहुत कम पैसा खर्चा करते हैं बुक्स वगैरह के ऊपर, ठीक है? नोटबुक्स भी हम एक ही यूज़ करते हैं, एक ही नोटबुक में हम सारे सब्जेक्ट्स ले लेते हैं। टेक्स्ट बुक्स तो हम कभी परचेज़ ही नहीं करते हैं, ये तो लाइब्रेरी में जाएँगे, ये तो यहाँ-वहाँ से उठा लेंगे। तो ये मैंने रियलाइज़ किया, जब एग्ज़ाम आती है तब सब भागते हैं बुक्स के लिए, भाई बुक्स मिलती नहीं एग्ज़ाम के टाइम पे। तो मैंने सोचा क्यों ना एक ऐसा ऐप ही बना दूँ जहाँ पे बुक्स फ्रीली अवेलेबल हो। अब एक चीज़ कि बुक्स ऑनलाइन तो अवेलेबल है, पर हर कोई उसे ढूँढ नहीं पाता है, क्योंकि बहुत सारे बुक्स ऐसे होते हैं जो तुम्हें बहुत ज़्यादा रिसर्च करके ढूँढना पड़ता है ना? तो मैंने वो सारी चीज़ें क्यूरेट करके, जो क्वेश्चन पेपर्स हैं, मतलब सारी चीज़ें एक ही जगह पर लाने की कोशिश की BSc CS के अंदर। और करंटली ये डेवलपमेंट में है, साइड बाय साइड इस पे भी हम वर्क कर रहे हैं। इसके अपडेट्स पे वर्क कर रहा हूँ मैं एक्चुअली अभी, ताकि इसमें MCQs वगैरह और इंटीग्रेट कर सके। इसके अलावा मैंने और भी ऐप्स बनाए, जैसे मैंने पॉलिटिकल पार्टी की बात कर रहा था, बहुजन विकास अघाड़ी, मुंबई की पार्टी है, मुंबई में इनका पार्टी है। तो इनको बेसिकली ऐप चाहिए था इनके वोटर्स के लिए, जहाँ पे वो कंप्लेन कर सके। तो एक और ऐप वो उनके लिए वो ऐप बनाया था। फिर बाकी फ्रीलांस प्रोजेक्ट में मैंने अभी करंटली मेरे पास दो ऐप वर्किंग में है, ई-कॉमर्स ऐप है, एक सुपरमार्केट के लिए और एक रेस्टोरेंट के लिए, लोकल बिजनेसेस है। और हम क्या करते हैं, जैसे हमने प्रोजेक्ट्स क्रैक कर लिए, तो वी हायर इंटर्न्स, ठीक है? और हम उनको भी सिखाते हैं और साइड बाय साइड हम भी काम करवा लेते हैं हमारा। उसके अलावा पोर्टफोलियो में बहुत सारे ऐप्स हैं, वो तो मेरे को ध्यान भी नहीं, मेरे गिटअप पे जाके देखना पड़ेगा। तो नंबर तो मैं एग्जैक्टली नहीं बता सकता हूँ, बट हाँ, थोड़े बहुत मैंने ऐप्स डेवलप कर लिए हैं।
Is there any other doubt, Sakshi, Shivam, Varsha? Many students learn different languages, but we can't develop anything. So what's the reason? Can you just elaborate? What do you mean by different languages and you can't develop anything? ये थोड़ा सा मैचिंग नहीं लगा मुझे. Can you just elaborate on this? Like Java. Okay, like you learn Java, but you can't really do, or you can't earn from doing Java. ठीक है. So if you see, doing only Java is not enough to work. Okay. अगर आपको जॉब करना है तो ठीक है, दैट्स फाइन. कंपनीज लाइक विप्रो, टीसीएस, ये सब उठा लेंगे जावा के बेस पे. भाई तुम्हें जावा आता है, आ जाओ. वहां पे जाके तुम्हें क्या करना है, सॉफ्टवेयर कोड्स करने हैं. जावा के बेस पे तुम एपीआई डेवलप कर बहुत सारी चीजें, बैक एंड डेवलपमेंट में भी तुम जा सकते हो, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में जा सकते हो, तुम डेस्कटॉप एप्लीकेशंस बना सकते हो जावा के बेस पे, तुम एंड्रॉयड एप्लीकेशंस बना सकते हो जावा के बेसिस पे. तो ऐसा नहीं है कि कोई लिमिटेशंस है या तुम कुछ डेवलप नहीं कर पा रहे हो. अगर कोई डेवलप नहीं कर पा रहे हो तो देयर इज समथिंग वी नीड टू लुक इनटू, इज गेट योरसेल्फ अ मेंटर. ओके, डिस्कस करो सारी चीजें कि एग्जैक्टली तुमने क्या क्या किया है और तुम्हें करना क्या है. सबसे इंपॉर्टेंट तो यही है, तुम्हें करना क्या है. तो उसके बेसिस पे ही मैं तुम्हें बता सकता हूँ कि व्हाट आर द ऑप्शंस दैट यू हैव. इवन डूइंग जावा देयर आर सो मेनी पॉसिबिलिटीज यू कैन डू, बट कीप वन थिंग इन माइंड, ये इंडस्ट्री है ऐसी है. हर हर एवरीवन टेल्स दिस थिंग ओनली, this is the industry where you have to keep yourself updated. Okay, you have to learn new things each and every day. This is very much important. So if you want to learn or earn using Java, you can contact me later on, or if you want to learn Android app development, you can contact us. Oh, Varsha, do you have anything else, like do you want to say anything else on this? Yeah, welcome. See, looking at the question, I cannot just, I cannot think what's the problem on that side, right? Because I don't even know like what you have done, what's your background and everything. So that's why for that you need a deep discussion, you need proper guidance. Is there any other doubt? Is there anything else you want to ask? Now tell me, what do you think about Android development? Are you fascinated by this field? Do you now you want to jump into this field right now? What's your view? Tell me something about. एक घंटे तक मैंने बोला, अब थोड़ा तुम इनपुट दो. कैसा लगा तुम्हें? तुम्हें क्या सीखना है? तुम्हें क्या करना है? थोड़ा तुम शेयर करो. मुझे थोड़ा अच्छा लगा। मैं जैसे अभी सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग की लाइन में अभी जा रही हूँ, अभी मैं सीख रही हूँ जस्ट। तो हम्म. मेरे को अब ये पता लगा कि सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग के साथ मैं एंड्रॉइड डेवलपमेंट का भी साथ-साथ कवर अप कर सकती हूँ एक तरह से। क्योंकि जैसे जावा इसी के अंदर इंक्लूडेड होती है, तो जावा तो मैंने ऑलरेडी सीखी हुई है, तो उसके वो मैं और अपग्रेड कर सकती हूँ एंड्रॉइड डेवलपमेंट के अंदर। डेफिनेटली. पहले मुझे लगता था कि 2 डिफरेंट फ़ील्ड्स है कि तुम एक से दूसरी फ़ील्ड में जंप कर ही नहीं सकते हो। बट अब ऐसा लग रहा है कि दोनों फ़ील्ड्स के अंदर जंप कर सकते हैं। तो वो चीज़ मेरे को काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी। ठीक है, ये चीज पे थोड़ी सी मैं क्लैरिटी और दे दूं कि तुम ऐसी इंडस्ट्री में हो ना जहाँ पे तुम्हारे पास फ्रीडम है. तुम एक बहुत बड़े पूल के अंदर हो जिसमें बहुत सारी टेक्नोलॉजीज है. ठीक है, तुम चाहो तो तुम वेबसाइट डेवलपमेंट भी सीखती हो, तुम जावास्क्रिप्ट भी सीख सकते हो. ठीक है, जावास्क्रिप्ट बहुत डिफिकल्ट नहीं, अगर तुम्हें जावा आती है तो जावास्क्रिप्ट तुम्हारे लिए इजी हो जाएगी. बिकॉज देखो, सी प्लस प्लस और जावा ये होता है बेस प्रोग्रामिंग का. ठीक है, इसके बेस पे तुम कुछ भी सीख सकते हो. जावास्क्रिप्ट हो गया, रिएक्ट हो गया, कॉटलिन हो गया, डार्ट हो गया, या गोलैंग हो गया, कुछ भी हो गया, कुछ भी, कोई भी प्रोग्रामिंग उठा लो ना लैंग्वेज, तुम कुछ भी सीख सकते हो अगर तुम्हें बेसिक्स आता है. जैसे ऊप्स आती है, जावा के अंदर ऊप्स कॉन्सेप्ट बहुत फेमस है ना, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग. अगर ये तुम्हें क्लियर है, तुम लिटरली कुछ भी कर सकते हो और तुम्हारे पास फ्रीडम है. तुम इस पूल में जितना दूर तक जाना चाहते हो उतने दूर तक जा सकते हो. और ये चीज कभी सोच के मत रखना कि सिर्फ इतना ही कर लेता हूँ या ये करके मेरे को पैसा मिल जाएगा, जॉब मिल जाएगा. नहीं, ये जो सेटिस्फेक्शन से जो तुम रुक जाते हो ना, इसमें मत रहो. ठीक है, हमेशा नए नए सीखते रहो.
अभी अगर तुम देखो मशीन लर्निंग बूम हो रहा है, तो मशीन लर्निंग को कैसे इंटीग्रेट करोगे तुम ऐप के साथ, वो सीखो। ठीक है, फ्लटर के अंदर तुम नेटिव एचडी के, मतलब फ्लटर के अंदर तुम एंड्रॉइड को कैसे इंटीग्रेट करोगे, जैसे कुछ चीजें होती है जो फ्लटर में नहीं होगी, तो उसके लिए तुम्हें जावा इंटीग्रेट करना होगा, तो वो कैसे करोगे वो सीखो। तो स्कोप तो बहुत है यार, स्कोप तो तुम पूछो, ये सवाल तो तुम पूछो ही मत कि स्कोप क्या है या स्कोप कितना है कि पैसा कितना है, ये तो पूछो ही मत। ये तो आवाम है, अंधा पैसा है। ठीक है, मुंबई में एक स्लैंग होती है अंधा पैसा, तो फील्ड में तो अंधा पैसा है, तुम्हारे ऊपर है। जैसे कि आपने बताया 1 मंथ ट्रेनिंग वी कैन बिल्ड एंड्रॉइड एप्लीकेशन। यस, सी 1 मंथ के अंदर आप इतना तो बेस बना लोगे कि आप अच्छे लेवल के आप एप्स बना लो कैसे। ठीक है, तो बेसिकली लास्ट 3 मंथ से मैं क्लासेस ले रहा हूँ स्किल वर्टेक्स में। ठीक है, वहाँ पे मोर देन 50 स्टूडेंट्स को मैंने ऑलरेडी ट्रेन किया ऐप डेवलपमेंट के लिए। तो हमारा पूरा मॉड्यूल होता है, मैं तुम्हें थोड़ा सा शोकेस करता हूँ। एक सेकंड, मैं तुम्हें सिलेबस बता दूँ कि है क्या क्या, तुम सीखोगे क्या क्या ऐप डेवलपमेंट के अंदर। 10 मिनट्स। सो इफ यू कैन सी माई स्क्रीन, ये हमारा सिलेबस है। ठीक है, ये सेल्फ पेस्ड भी है, तुम्हें रिकॉर्डिंग्स भी मिलती है और लाइव वर्चुअल लाइव क्लासेस भी होती है। ठीक है, एवरी ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे वी हैव और लाइव सेशन और डाउट सेशंस। अगर तुम्हें कोई डाउट्स होते हैं या पर्सनल मेंटरिंग, तुम्हें कोई कोई भी चीज में कोई भी चीज तुम्हें पूछनी है, वी कीप इट ऑन फ्राइडे। ठीक है, इवन बिफोर ज्वाइनिंग दिस वेबिनार, आज भी हमारा एक सेशन था एंड्रॉइड ऐप डेवलपमेंट का, और आज हमने सेकेंड बैच, हमारी एक और बैच कंप्लीट की। तो मैं तुम्हें थोड़ा सा ओवरव्यू दे दूं। हम सबसे पहले हमारे बिल्डिंग ब्लॉक सीखेंगे। ठीक है, ये फाउंडेशन में तुम्हें सिखाऊंगा इसमें, जैसे कैसे एंड्रॉइड फर्स्ट ऐप बनाते हैं। ठीक है, कैसे जावा प्रोग्रामिंग करते हैं, कैसे यूआईज बनाते हैं, वो सारी चीजें फर्स्ट मॉड्यूल हो गई। सेकेंड मॉड्यूल में थोड़ा थियोरिटिकल कॉन्सेप्ट्स हो गए, एक्टिविटीज क्या, इंटेंट्स क्या है, ये थियोरिटिकल कॉन्सेप्ट्स है। ठीक है, एक्टिविटी एंड्रॉइड के अंदर के। फिर यूजर इंटरेक्शन, कैसे तुम यूजर के साथ इंटरेक्ट करोगे, इमेज इमेज व्यू, टेक्स्ट व्यू, कैसे फोटोज क्लिक करोगे, कैसे वीडियोज रिकॉर्ड करोगे, कैसे माइक्रोफोन से कोई ऑडियो रिकॉर्ड करोगे। ठीक है, मेन्यूज एंड पिकर्स, कैसे एक व्हाट्सएप जैसा एप्लीकेशन बनता है, उसका फ्रेम कैसा होता है। सी व्हाट्सएप बनाना इजी नहीं है, इसका मतलब ये मत समझ जाओ कि भाई तुम 1 महीने के अंदर व्हाट्सएप जैसा ऐप बना दोगे, बिल्कुल नहीं। इस लेवल के ऐप को बनाने के लिए लाखों रुपए खर्च करना पड़ते हैं, इनफैक्ट करोड़ों रुपया खर्च करना पड़ते हैं। हजारों डेवलपर्स साथ में बैठते हैं, बहुत सारे चीजें एक साथ होती है। ठीक है, तब जाके इतना बड़ा ऐप बनता है, बहुत टाइम लगता है। ऐसा नहीं है कि 1 महीने में तुम्हें व्हाट्सएप सिखा दूंगा, नहीं, रियलिटी वाली बात करता हूँ। 1 महीने में तुम्हें बेसिक चैट एप्लीकेशन सिखा दूंगा, कैसे चैट ऐप बना सकते हो, और उसके ऊपर फिर तुम्हें इतना मैं काबिल कर दूंगा कि तुम खुद के बेस पे रिसर्च कर करके फिर आगे बढ़ सको। ठीक है, तुम अगर देखो कोई भी फील्ड में, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट हो गया, आईटी की फील्ड ऐसी होती है कि एक लिमिट तक आपको कोई भी सपोर्ट कर सकता है। ठीक है, एक इंटरमीडिएट लेवल होता है, उसके आगे तुम्हें पढ़ पढ़ के बढ़ना है, डॉक्यूमेंटेशन पढ़ पढ़ के आगे बढ़ना है ना। उसके लिए तुम्हें कोई ट्यूटोरियल्स नहीं मिलेंगे, एडवांस कॉन्सेप्ट्स के लिए ब्लॉग्स मिलते हैं बहुत कम। जो हम जैसे डेवलपर्स होते हैं, हम ब्लॉग्स लिख देते हैं। ठीक है, जो एडवांस कॉन्सेप्ट्स होते हैं ब्लॉग्स लिख लिया, जो न्यूबीज होते हैं वो आप ब्लॉग से पढ़ते हैं या डॉक्यूमेंटेशन रेफर करते हैं। बट जो एडवांस कॉन्सेप्ट होते हैं, जो ऊपर के होते हैं, वो तुम्हें खुद से करने होते हैं। वहां तक मैं तुम्हें सिखा दूंगा कि भाई कि ये सब चीजें हंट कैसे करते हैं, कैसे एक फीचर के लिए सर्च करते हैं। फॉर एग्जांपल ऐड टू कार्ट फंक्शनलिटी, कार्ट में कोई भी चीज ऐड करते हो तो फंक्शनलिटी को सर्च कैसे करोगे, ऐड कैसे करोगे, सारी चीजें मैं तुम्हें इतना तो बेस तुम्हारा मजबूत कर दूंगा कि तुम रिसर्च करके खुद से वो चीज कर सको। ठीक है, क्योंकि 1 महीने के अंदर आप खुद भी समझते हो कि सब चीजें करना पॉसिबल नहीं है, एक लिमिटेशन होती है। तो ये वो लिमिटेशन है जो जो तुम्हें सिखाई जाएगी। कैसे खूबसूरत यूजर इंटरफेस बनाते हैं एप्लीकेशन में, कैसे बैकग्राउंड में गाने वगैरह चलाने हैं, कोई फाइल्स डाउनलोड वगैरह करनी है तो वो कैसे करते हैं। अलार्म सिखाऊंगा, अलार्म मतलब अलार्म कैसे बजती है, मैनेजर्स, शेड्यूलर्स, कैसे बैकग्राउंड में टास्क करने हैं तुम्हें, वो सब चीजें, कैसे डेटा स्टोर करना है। फिर व्यू मॉडल, लाइव डेटा और रूम रूम डेटाबेस है, बिल्ड ऑन टॉप ऑफ एसक्यूएल लाइट, तो कैसे उसको इंटीग्रेट करेंगे हम अपने एंड्रॉइड एप्लीकेशन में। ठीक है, व्यू मॉडल, लाइव डेटा एंड्रॉइड कंपोनेंट है, आर्किटेक्चर कंपोनेंट्स है, तो वो सीखेंगे हम। ठीक है, उसके बाद कुछ एडवांस कॉन्सेप्ट्स है, एडवांस यूआई डिजाइनिंग के, यूआई को और कैसे बेटर करो वो मैं तुम्हें बताऊंगा। कैसे प्ले स्टोर पे अपलोड करते तुम्हारे एपीके को, कैसे एपीके जनरेट करते, कैसे बंडल फाइल बनाते, कैसे सिग्नेचर जनरेट करते, डिजिटल सिग्नेचर्स होती है,
कैसे वो सारी चीजें करते हैं, वो सब चीजें सारी चीजें इसमें इंक्लूडेड है, ठीक है। और इस लेवल तक तो आप पहुंच जाओगे, इसके बाद आप खुद के एप्स बनाओ। इवन देखो, ये हो जाने के बाद तुम्हें 2 प्रोजेक्ट्स हम देते हैं, ठीक है, टेस्ट करने के लिए कि तुमने कितना सीखा और तुम्हें कितना और सीखना बाकी है, ठीक है। तो पहला छोटा सा माइनर प्रोजेक्ट होता है, दूसरा मेजर प्रोजेक्ट होता है। मेजर प्रोजेक्ट में हम बेसिकली चैट एप्लीकेशन बनवाते हैं, और लास्ट बैच के बच्चों ने तो लिटरली बहुत बहुत अच्छा काम किया, मतलब अनएक्सपेक्टेड आउटपुट्स मिले। मैंने कभी सोचा नहीं था कि 1 महीने के बाद, 1 महीने के अंदर कोई इतना भी सीख सकता है कि इस लेवल का एप्लीकेशन बना के दे। अगर हम वापस कनेक्ट हो पाए तो मैं आपको वो भी शेयर करके दिखाऊंगा, कुछ डेमोज जो हमारे स्टूडेंट्स ने ऑलरेडी बनाए हैं, ठीक है, जो 1 मंथ ट्रेनिंग हमसे ली जिन्होंने, और उसके बाद उन्होंने जो बनाया वो। वुड यू एक्सप्लेन अबाउट एंड्रॉइड डेवलपमेंट लाइक इंट्रोडक्शन? ये डाउट, मुझे भी डाउट आ रहा है साक्षी, बिकॉज हम ने इस वेबिनार में बेसिकली वही किया, थोड़ा सा हमने इंट्रोडक्शन लिया एंड्रॉइड डेवलपमेंट में। आपको और क्या जानना है इसमें, आप मुझे वो पूछिए। आई एम सॉरी, एक्चुअली मैं बता रहा था तो मैंने आपका डाउट मिस कर लिया। कब से ज्वाइन कर सकते हैं क्लासेस? ठीक है, तो जो हमारी नेक्स्ट बैच है वो आज ही स्टार्ट हुई है, 7 कि आज आज ही उनका स्टार्टिंग है, उनका ओरिएंटेशन कल होगा। अगर आपको कल के बैच में ज्वाइन करना है तो ये सारी डिटेल्स आप हमारे एडमिन से पूछ सकते हैं, जो यहाँ पे अवेलेबल है अभी। हॉट स्किल वर्टेक्स, होस्ट स्किल वर्टेक्स जो हमारे होस्ट है, वो आपको सारी डिटेल्स दे देंगे इसके रिलेटेड। आप हमें पर्सनली भी पिंग कर सकते हो, आपको सारी चीज़ें, सारी डिटेल्स जो आपके टच में उनसे आप बात कीजिए, और वो आपको सारा गाइडेंस दे देंगे कि अगर आपको कोर्स में एनरोल करना है कैसे करोगे, क्या करोगे। एंड्रॉयड बनाने के लिए कौन सा ऐप लगेगा? हाँ, ये क्या सवाल था? एंड्रॉयड बनाने के लिए कौन सा ऐप लगेगा? सी, एंड्रॉयड तो ऑपरेटिंग सिस्टम है, तुम एंड्रॉयड बना नहीं सकते। तुम एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए तुम्हारे एप्लीकेशन डेवलप कर सकते हो, ठीक है, तुम तुम्हारे एप्स डेवलप कर सकते हो, और इसके लिए तुम्हें एंड्रॉयड स्टूडियो लगेगा। ये आईडीई होता है, ऐप नहीं होता, सॉफ्टवेयर होते हैं। जैसे पाइथन के लिए पाइचाम है, और भी बहुत सारे से आईडीज है, इंटेल जेके है, और भी इंडस्ट्री में यूज होते होंगे, वीएस कोड वगैरह है। तो वैसे ही एंड्रॉयड के लिए हम, हाँ, जैसे जावा के लिए तुम नोटपैड यूज करते हो, और जावा के लिए नोटपैड नहीं यूज करते, जावा के लिए नेटबीन्स या एक्लिप्स प्रेफर करो, ठीक है। नोटपैड सिर्फ तुम्हारे बेस के लिए होता है, तुम्हें समझाने के लिए होता है, बट जावा डेवलपमेंट डेफिनेटली एक्लिप्स या नेटबीन्स पे करो। एंड्रॉयड स्टूडियो के लिए होता है एंड्रॉयड, सॉरी, ऐप डेवलपमेंट के लिए होता है एंड्रॉयड स्टूडियो, ठीक है। तुम्हें अगर मैं चाहिए तो थोड़ा सा दिखा देता हूँ। मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है, एक सेकेंड। या स्क्रीन शेयरिंग इज ऑन, दिखा दो। देखो, ये वो सॉफ्टवेयर है एंड्रॉयड स्टूडियो। देखो, आईडीई है गूगल की तरफ से फॉर एंड्रॉयड एप्लीकेशन डेवलपमेंट। डाउनलोड कैसे करना है? तो सिंपल है, बस इस लिंक पे जाना है। कोई झंझट हमारी नहीं है, जैसे तुम जावा में कैसे सेटअप करते हो, पाथ वगैरह देते हो, कोई कोई झंझट नहीं है इसमें। सिर्फ ये डाउनलोड करना है, इस पे क्लिक करना है, ठीक है। आई हैव रीड ऑल द टर्म्स एंड डाउनलोड कर दो, और एक बार ये डाउनलोड हो गया तो बस इंस्टॉल करके रन करना है, जैसे तुम दूसरी कोई चीजें करते हो। दैट्स एज सिंपल एज दैट। क्लासेस आर फ्री? तो नहीं, डेफिनेटली फ्री नहीं है। इसके रिगार्डिंग तुम्हें होस्ट सारी जानकारी देंगे कि क्या है, कैसा है, कब है, क्यों है, सारी जो भी तुम चीज़ें होस्ट के साथ तुम डिस्कस कर लो, या जो भी तुम्हारे कांटेक्ट में है स्किल वर्टेक्स के थ्रू तुम उनसे डिस्कस कर सकते हो। और Hussain, I'll answer that question. यस यस यस, Yeah. Our executive will be contacting you tomorrow, and will be sharing you all the details about the course, and you can ask your doubts to him. All right, you can clear your doubts with Hussain about Android development. इज देयर एनीथिंग एल्स? तेजल, वर्षा, साक्षी, मोहित, आईसी ये काफी शांत है काफी टाइम से। आपको कोई डाउट्स वगैरह? लेफ्ट, ऑलराइट। इज देयर एनीथिंग एल्स टू एड्रेस? Hussain, I think we can wind up. ऑलराइट, Thanks for your precious time, Hussain. yes yes, thank you everyone.
And if you want to know anything else, you can contact me either LinkedIn or the executives if you want to know. All right. Thank you. Thank you. Thank you. Varsha, this was a demo class, and our batch starts from today only, but our first class is from tomorrow. One of our executive will be contacting you shortly, and he'll be guiding you throughout the training program and its cost also. Thank you for your time. Okay. Hope you liked the session.